हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेषराज और फिर हम आपके सामने एक छोटी सी पोएम लेकर के आए हैं क्लास 5th इंग्लिश मेरी गोल्ड में से। और पोएम का नाम है सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। ये 5th क्लास में से इंग्लिश की जो नोटबुक इंग्लिश की जो बुक है उसमें एक पोएम है सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। और क्या क्या पढ़ेंगे इस पोएम में हम? सबसे पहले समरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद में पोएम रेसिटेशन हम करेंगे, पोएम रीड करेंगे, ट्रांसलेशन आपको बताएंगे, हिंदी में बताएंगे, न्यू वर्ड्स भी साथ साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद में एक वर्कशीट बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरी इस पोएम को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं सबसे पहले समरी ऑफ दिस पोएम सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। This poem describes how people are in such a hurry these days. Wherever they are in a hurry. They go here and there hurriedly. They can be seen on the subway. They can be seen with umbrellas in rains. They can be seen rushing for the taxis and riding elevators. Although they are walking singly, they are in a crowd everywhere. Some people are silent while some are talking loudly. They can laugh and smile, but they don't have time to look at others. It is because they are in a hurry. तो this poem describes how people are in such a hurry these days. ये कविता, ये जो पोएम है बताती है कि आजकल लोग किस तरह से हर समय जल्दबाजी में रहते हैं। जहाँ कहीं भी वे दिखते हैं जल्दबाजी में ही होते हैं, वो हरी में होते हैं। वे जहाँ यहाँ वहाँ सब जगह तेज़ी से जाते हैं। वे भूमिगत जो मार्ग होते हैं, सबवे जो होते हैं, उस पर दिख सकते हैं। वे वर्षा के दौरान छतरी के साथ दिख सकते हैं, अम्ब्रेला के साथ में। वे टैक्सियों की ओर दौड़ते हुए दिख सकते हैं, शौचालय सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख सकते हैं, एलिवेटर पे अकेले चलते हैं, कुछ हमेशा भीड़ में चलते हैं। कुछ लोग शांत रहते हैं जबकि कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। वे हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन दूसरों पर नज़र डालने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसा इसलिए कि वे जल्दी में हैं, बिकॉज दे आर इन ए हरी। वो जल्दबाजी में हैं सब लोग। इस प्रकार से सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। आइए अब इस पोएम को देख लेते हैं, कुछ अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा सिंग कर लेते हैं। पोएम है, द पोएम नेम इज सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। Okay, here is the poem. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप भी अपने अनुसार कोई ट्यून बना सकते हैं इसकी। Okay, once again. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. Next. People on the sidewalk, people on the bus. People passing, in back and front of us. Once again. People on the sidewalk, people on the bus, people passing, in back and front of us. People on the sidewalk, people on the bus, people passing, in back and front of us. Okay, third stanza is here. People on the subway, underneath the ground, people riding taxi, round and round and round. People on the subway, underneath the ground, people riding taxi, round and round and round. Next. People with their hats on, going in the doors, people with umbrellas, when it rains and pours. People with their hats on, going in the doors, people with umbrellas, when it rains and pours. People with their hats on,
going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. People with their hats on, going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. Next. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go. Once again. People in tall buildings. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go. Next, please. People walking singly. People in a crowd. People saying nothing. People talking loud. है ना, कुछ लोग सिंगल होते हैं, कुछ क्राउड में होते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ बहुत बोलते हैं. So people walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud. Okay, next please. People laughing, smiling. People laughing, smiling. Grumpy people too. People who just hurry and never look at you. People laughing, smiling. Grumpy people too. People who just hurry and never look at you. People laughing, smiling. Grumpy people too. People who just hurry and never look at you. People laughing, smiling, grumpy people too. People who just hurry and never look at you. People laughing, smiling, grumpy people too. People who just hurry and never look at you. देखते भी नहीं है कुछ लोग आपकी तरफ, देखेंगे भी नहीं, इतनी जल्दबाजी में वो लोग रहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. Sing a song of people. This is the last stanza. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. Sing a song of people. Sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. आप शहर में लोगों को देखते हैं लेकिन उनको जानते नहीं. शहरों में ऐसा ही होता है ना, पास में रहने वाले लोगों को भी नहीं जानते, लेकिन गाँव में इससे बिल्कुल उल्टा है ना. Okay, so this was the poem. Now we will translate this poem. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. इसमें देखिए न्यू वर्ड्स कौन कौन से. अप एंड डाउन का मतलब है इधर उधर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर. साइड वॉक का मतलब यहाँ पे है फुटपाथ से. ठीक है, साइड में चलते हैं ना, फुटपाथ होता है रोड के साइड में, तो वो फुटपाथ है.
इसका मतलब क्या है? सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल वॉकिंग फास्ट और स्लो, मतलब लोगों का गीत गाओ जो कभी तेज गति से चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, उनका गीत गाओ। अप एंड डाउन दे गो पीपल ऑन द साइड वॉक, लोग जो नगर में, जो सिटी में एक ओर से दूसरी ओर आ जा रहे हैं, कुछ साइड वॉक फुटपाथ पे चल रहे हैं। पीपल ऑन द बस, या बसों में, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, या तो बसों में लोग जो हमारे पीछे और सामने से गुजर रहे हैं उनके बारे में गीत गाओ, उनके लिए गीत गाओ। तो लोगों का गीत गाओ जो कभी तेज गति से चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, और सिटी में एक दूसरी तरफ वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, हमारे पीछे से, हमारे सामने से, है ना, पीछे से मतलब बैक से गुजर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने से गुजर रहे हैं, तो उनका लोगों का गीत गाओ। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेंजा। लोगों को गीत गाओ जो तेज चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, जो इस ओर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आगे से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा प्लीज। पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, इसका मतलब है people riding taxis round and round and round, people with their hats on going in the doors, people with umbrellas when it rains and pours। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। सबवे का मतलब है, ओके, सबवे अंडरग्राउंड पासेज होता है। अंडरनीथ का मतलब नीचे, राइडिंग का मतलब है चढ़ रही हैं, राइड है ना, सवारी करना। पॉज का मतलब है उड़ेलना। ओके, सो जो लोग हैं वो धरती के नीचे बने जो सबवे हैं उधर से जा रहे हैं। टैक्सियों में चढ़कर वो इधर उधर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर पर टोपी पहनी है और घरों के अंदर जा रहे हैं। लोग जो बारिश होने पर छतरी लेकर निकल पड़ते हैं, तो उन लोगों का गीत गाओ जो सबवे से जा रहे हैं, भूमिगत मार्ग से जा रहे हैं, टैक्सियों में चढ़कर इधर उधर जा रहे हैं, सिर पे टोपी पहने हुए हैं। कुछ लोग अंदर, घर के अंदर जा रहे हैं, बारिश में छतरी लेकर निकल पड़े हैं। तो सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, उन लोगों का गीत गाओ। सो पीपल ऑन द सबवे, यानी सबवे से जा रहे हैं, अंडरनीथ द ग्राउंड। पीपल राइडिंग टैक्सी, टैक्सी में वो जा रहे हैं किधर, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ ने टोपी पहन रखी है, गोइंग इन द डोर्स, कुछ घरों में जा रहे हैं। पीपल विथ अम्ब्रेला, छतरी लिए जा रहे हैं। व्हेन इट रेन्स एंड पोर्स, जब बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, riding elevators up and down they go, people walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। स्टोर्स का मतलब है सामान रखने की जगह होती है ना, स्टोर। एलिवेटर्स का मतलब है लिफ्ट होती है ना, स्वचालित सीढ़ियाँ अपने आप चलती हैं जो। और सिंगली का मतलब है अकेला, अलोन। सो लोग जो ऊंची इमारतों में रहते हैं, जो ऊंची, जो टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं, और नीचे जो बनी दुकानों में दिख जाते हैं, नीचे जो स्टोर्स होते हैं ना उनमें दिख जाते हैं। लोग जो है लिफ्ट में इधर ऊपर या नीचे जाते जाते रहते हैं। कुछ लोग अकेले चल रहे हैं, कुछ भीड़ में चल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं। सो सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, उन लोगों का गीत गाओ जो टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो नीचे बने स्टोर्स में रहते हैं, जो लिफ्ट में इधर उधर जाते हैं ऊपर नीचे, जो अकेले चल रहे हैं, जो भीड़ में चल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, जो ज़्यादा बोल रहे हैं। सो उसके बारे में आप गीत गाओ, उनके बारे में। ओके, सो पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, राइडिंग एलिवेटर्स अप एंड डाउन दे गो। ओके, पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड। तो यहाँ पे है जो लोग ऊंची बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो नीचे स्टोर्स में रह रहे हैं, जो एलिवेटर्स में अप एंड डाउन, इधर उधर, ऊपर नीचे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो अकेले चल रहे हैं, जो क्राउड यानी भीड़ में चल रहे हैं, जो सेइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो टॉकिंग लाउड, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। नेक्स्ट प्लीज। ओके, पीपल लाफिंग स्माइलिंग, ग्रम्पी पीपल टू, पीपल हु जस्ट हरी and never look at you, sing a song of people who like to come and go, sing of city people you see but never know। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। ग्रम्पी का मतलब है चिड़चिड़ा, जो इल टेम्पर्ड वाले लोग होते हैं ना, चिड़चिड़े वाले स्वभाव के।
हरी का मतलब है जल्दी से, HURRY। तो लोग जो हंसते हैं, लाफिंग। स्माइलिंग, जो लोग मुस्कुराते हैं। ग्रम्पी पीपल टू, जो लोग चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। पीपल हु जस्ट हरी, लोग जो जल्दी में हैं। एंड नेवर लुक एट यू, और आप पर कभी नज़र भी नहीं डालते हैं, वो लोग जल्दी में रहते हैं ना। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, उन लोगों का गीत गाओ। हु लाइक टू कम एंड गो, जो आते हैं और जाते हैं। सिंग ऑफ सिटी पीपल, नगर के लोगों का गीत गाओ, उन सिटी के जो पीपल हैं उनका गीत गाओ। यू सी बट नेवर नो, जिन्हें आप देखते जरूर हैं लेकिन जानते कभी नहीं। सो पीपल लाफिंग स्माइलिंग, जो लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं। ग्रम्पी पीपल टू, जो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। पीपल हु जस्ट हरी, जो लोग जल्दी में हैं। एंड नेवर लुक एट यू, आपकी तरफ नज़र भी नहीं डालते। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, उनके लिए आप गाना गाओ। हु लाइक टू कम एंड गो, जो आते हैं जाते हैं। सिंग ऑफ सिटी पीपल, आप उन सिटी के पीपल के लिए गाना गाओ। यू सी बट नेवर नो, क्योंकि आप उनको देखते जरूर हैं लेकिन जानते कभी नहीं है। ओके, आइए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके ग्रामर। ओके, सबसे पहले ऑपोजिट वर्ड्स देखते हैं। फास्ट, फास्ट का ऑपोजिट स्लो। अप का ऑपोजिट डाउन। फ्रंट का ऑपोजिट बैक। गो का ऑपोजिट वर्ड कम। नेवर का ऑपोजिट वर्ड ऑलवेज, यानी हमेशा। लाउड का मतलब जोर जोर से बातें करना। साइलेंट का मतलब बिल्कुल शांत रहना। बिलो का मतलब नीचे, अबव का मतलब ऊपर। सो फास्ट, स्लो, अप डाउन, फ्रंट बैक, गो कम, नेवर ऑलवेज, लाउड साइलेंट, बिलो अबव, ये अपोजिट वर्ड। आप देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। नेवर एवर, सी बी, स्माइल माइल, वॉकिंग टॉकिंग, टेकिंग, यहाँ पे TALKING आना चाहिए था। राउंड फाउंड, माउंड साउंड, लाउड क्लाउड, गोइंग फ्लोइंग। ओके, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। तो बहुत ही अच्छे से हमने ग्रामर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। आइए, डिग्रीज। टोल, टोलर, टोलेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। सो इसमें 3 डिग्री हैं, पहली पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो टोल इसमें पॉजिटिव है, टोलर कंपेरेटिव डिग्री है, टोलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सो टोल, टोलर, टोलेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट एंड फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। हमने इस पोइम में से लिए हैं सारे शब्द। ओके, नेक्स्ट प्लीज। सो ऑपोजिट राइमिंग वर्ड्स, डिग्रीज एंड नंबर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम। गो, वेंट, गोन। नो, न्यू, नोन। सिंग, sang, sung. Walk, walked, walked. Pass, passed, passed. Laugh, laughed, laughed. So ये भी इस पोएम में से ली गई हैं, ये जो वर्ब हैं। सो कम का क्या होगा? कम का कम, केम, कम। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, है ना, पास्ट फॉर्म वेंट है। गो, वेंट, गोन। नो का न्यू, ओ की जगह ई आया ना, नो, न्यू, नोन। ओके, सिंग, सेंग, संग। सिंग का मतलब गाना होता है ना। वॉक, WALK, वॉक है ना, चलना, वॉकिंग करते हैं ना, मॉर्निंग वॉक। वॉक का सेकंड फॉर्म क्या है? वॉक्ड, वॉक्ड, सेम टू सेम है लास्ट दोनों, वॉक्ड, वॉक्ड। फिर पास का भी सेम है जैसे वॉक का था, पास्ट, पास्ट। ओके, और लास्ट में लाफ है ना, LAUGH। लाफ का मतलब क्या होता है? आया था ना लास्ट वाले में, लाफ और स्माइलिंग, जो लोग हंसते हैं, जो मुस्कुराते हैं, उनके लिए गाना गाओ। तो यहाँ पे लाफ जो है हंसना है, लाफ का जो वर्ब होगा वो होगा लाफ्ड, लाफ्ड। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ऑपोजिट, फिर राइमिंग वर्ड्स, फिर डिग्रीज, नंबर 4 वर्ब, 4 चीज़ें आपको बता दी। देखो इस पोएम में से ही। चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, 5 नंबर पे हम आपको बताएंगे। ओके, फाइंड हिडन वर्ड। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है, वो आपको बताना है। जैसे
स्माइलिंग में स्माइल छिपा हुआ है ना। टॉकिंग में क्या छिपा हुआ है, टॉक छिपा हुआ है, TAL के टॉक। सॉन्ग, सॉन्ग में क्या छिपा हुआ है, सन, SON, सन का मतलब पुत्र, बेटा। स्लो क्या छुपा हुआ है, लो छिपा हुआ है इसमें, LOW, लो। हाई ऑपोजिट होता है। बस में क्या छिपा हुआ है, अस। सब वे छिपा हुआ है इसमें है ना, रास्ता, सबवे, जो अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं ना, भूमिगत मार्ग। अंडरनीथ में क्या छुपा हुआ है भैया, अंडर नीट भी इसमें है, दो इसमें वर्ड है, अंडर भी है और नीट भी है। अच्छा ईट भी है, चलिए, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ड्स नहीं बनाने हैं, बल्कि एक एक बार एक लेटर को यूज़ करना है, अंडर नीट। फिर नेवर में क्या छुपा हुआ है, एन को हटा दो, एवर। चलिए दोबारा से देख लीजिए, फाइंड हिडन वर्ड। हिडन का मतलब है छुपे हुए, वर्ड के अंदर छुपे हुए हैं। आप एक लेटर को या दो लेटर को जितने भी हटा दीजिए, फिर कोई वर्ड बनता है तो वो देख लीजिए, ठीक है। तो स्माइलिंग में स्माइल है, टॉकिंग में टॉक है, सॉन्ग में सन है, स्लो में लो है, बस में हस है, सबवे में वे है, अंडरनीथ में अंडर और नीट है, और नेवा में एवर है। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके हिडन वर्ड्स भी हो गए। ये 5 चीज़ें हमने देख ली। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं उसके बाद में। ओके, नेक्स्ट है चेंज द नंबर। अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज प्लूरल आपको बताना है यहाँ पे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, S लगा दिया। हैट, टोपी है ना, हैट आया था, हैट्स हो गया, HETS। बस, बसेज, कुछ लोग बस में जा रहे हैं, कुछ लोग टैक्सीज में जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, पीपल, पीपल्स। ओके, सो अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज, हैट, हैट्स, बस, बसेज, टैक्सी, टैक्सीज, पीपल, पीपल्स। सो चेंज द नंबर, ये प्लूरल हो गया आपका। चलिए उसके बाद देख लेते हैं होमोफोन्स। पूरी ग्रामर देखेंगे आज हम। होमोफोन्स में क्या है, साउंड सेम आती है, स्पेलिंग अलग होती है ना। टू, TWO, TWO का मतलब है भी, है ना। मी टू, मैं भी। और TWO मतलब ये नंबर है 2। THEIR, देयर का मतलब है वहाँ पे, है ना। अच्छा, THEIR का मतलब है उनका, है ना। दे, देयर, देम होता है ना, वैसे THERE का मतलब वहाँ पे। KNOW, नो का मतलब जानना, है ना। और NO का मतलब नहीं। आइए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Which modes of transport do the people use to move around the city? कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं लोग यहाँ शहर में इधर से उधर जाने के लिए। तो इन द सिटी पीपल यूज़ कार्स, टैक्सीज, बसेज, ट्रेन्स, ट्रैम्स, rickshaws, etc. to move. Number 2. What are the things that the people carry with them while moving around? लोग अपने साथ में क्या रखते हैं जब इधर उधर जाते हैं। While moving around, people carry bags, briefcases, suitcases, etc. अपने साथ में बैग रखते हैं, वो briefcase रखते हैं, suitcase रखते हैं आदि। Where all do you find these very busy people? ये आपको इतने व्यस्त लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो I find all these busy people on roads, on bus stops, on sidewalks, in market, etc. कहाँ मिलते हैं, रोड्स पे मिलते हैं, बस स्टॉप पे मिलते हैं, साइड वॉक्स पे मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। ओके, ये हो गए आपके 3 प्रश्न। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैव यू सीन क्राउड ऑफ पीपल? ये जो भीड़ है लोगों की, आप ये कहाँ देखते हैं, कहाँ देखी है आपने। आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल एट रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, शॉपिंग मॉल्स, स्टेडियम, सिनेमा हॉल्स, फेयर्स, एट्सेट्रा। तो कहाँ होती है लोगों की भीड़, तो रेलवे स्टेशन पे हम भीड़ को देख सकते हैं, बस स्टैंड होता है वहाँ पे देख सकते हैं, शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं ना, स्टेडियम में देख सकते हैं, सिनेमा हॉल में देख सकते हैं, फेयर मेले में देख सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी देख सकते हैं। चलिए 5 नंबर, वाई डू यू थिंक ऑल दिस पीपल आर इन हरी? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये लोग जल्दी में हैं, क्यों होते हैं वो? बिकॉज दे हैव टू डू मैनी थिंग्स एंड हैव टू गो लॉन्ग डिस्टेंसेस। उनके पास में कई सारे काम होते हैं और उनको कहीं जाना होता है। सो लेट्स राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्लो, फास्ट, बैक, फ्रंट। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी ऑपोजिट आए हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। स्लो का फास्ट है, बैक का मतलब पीछे, फ्रंट का मतलब सामने आगे।
ओके। बिलो का मतलब नीचे, ये बता दिया था आपको। अबव का मतलब ऊपर। लाउड का मतलब जोर जोर से बातें करते हैं ना। स्लो का मतलब धीरे। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। टोल का मतलब लंबी लंबी इमारतें होती है ना। शॉर्ट का मतलब छोटी। क्राउड का मतलब भीड़। अलोन का मतलब अकेला। गो का मतलब जाना और कम का मतलब आना। गो कम, कम गो, कम गो। ओके। सो बिलो, अबव, लाउड, स्लो, अप, डाउन, टोल, शॉर्ट, क्राउड, अलोन, गो, कम। चलिए, हो गए ऑपोजिट वर्ड्स आपके। क्वेश्चन नंबर 7। The people who live in cities often wish they could live in quiet towns. Do you like the place you live in? Tell your partner 2 things you like and don't like. I live in the city. I like the place where I live. There is a developed park with green grass and tall trees. I go for a walk there. There is a school, library, hospital, and a market. We get all the things we need. There is a local bus stand. I can go wherever I like. Why I don't like? However, I have to travel a long distance to reach my destination, railway station, etc. It is very near to slum area, so there is no proper law and order. Question number 8. Did you observe that in the poem, the last words in every second and fourth line rhyme with each other? Can you write a 4-line poem? तो आप कोई भी 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं जिसमें राइमिंग स्कीम हो। ओके। I live in a tall building like a bird in a nest. Here I study. So कोई भी 4 लाइन की आप एक छोटी सी पोएम बना सकते हैं जिसमें राइमिंग वर्ड जो लास्ट वाला लेटर है फर्स्ट लाइन में और फोर्थ लाइन में, सॉरी सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन में वो जो राइमिंग स्कीम मिले आपकी। ओके। 9 नंबर। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री. कितने लोग हो सकते हैं हमारे देश में? देर आर मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव इन आवर कंट्री. So 130 crore. We don't have enough land for all the people on the earth. There is not enough food and water for all the people. सबके लिए मतलब पर्याप्त खाना नहीं है, पर्याप्त ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है. Interview your teacher and get her responses for following question. Why did you become a teacher? क्यों बने आप टीचर? So टीचर का जवाब है I became a teacher because I like teaching. मुझे पढ़ाना पसंद है. Question number 2. How do you come to school every day? आप स्कूल में कैसे आते हैं, है ना? I come to school by an auto rickshaw. अब हो सकता है वो गाड़ी में आते हों, बाइक पे आते हों, स्कूटर पे आते हों, जो भी है. ओके. सो इंटरव्यू योर टीचर. आपके टीचर से आपको पूछना है कुछ जो 2-3 क्वेश्चन है कि आप टीचर क्यों बने, आप स्कूल में डेली जो है कैसे आते हैं, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू यूज़, और डू यू हैव ए पेट, कि आपके पास में कोई पालतू चीज़ है, पेट है. ओके. तो उसका जवाब जो भी होगा, यस आई हैव ए पेट. मेरा जवाब भी यस है, आई हैव पैट्स. क्या पेट है? लाइक रैबिट भी है, कैट भी है, डॉग भी है ना? ओके. तीनों साथ में खेलते हैं. What kind of books do you like to read? किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? I like to read current events. समसामयिक, है ना, जो करंट, जो अभी वर्तमान में है. चलिए, तो जो करंट इवेंट्स हैं, अभी समसामयिक जो घटनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना इन टीचर्स को पसंद है. फिर पूछ रहे हैं व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं. तो एक टीचर का इंटरव्यू है, टीचर जो भी जवाब देगा आप यहाँ पे देख लीजिए. ओके. तो टीचर यहाँ पे जो भी हॉबीज़ बताए आपको, माय हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, ट्रैवलिंग एंड सब सर्फिंग इंटरनेट, है ना, कुछ भी बता सकते हैं. फिर है नाउ राइट ए पैराग्राफ अबाउट अ टीचर विद द इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड. अपने टीचर के बारे में लिखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू में मिली उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए. सो लिखिए माय टीचर सेज द सी, है ना, मैडम है, तो सी बिकेम ए टीचर बिकॉज सी लाइक टीचिंग. सी कम्स टू स्कूल डेली बाय एन ऑटो रिक्शा. सी हैज़ ए काउ एंड ए डॉग एंड
ओके, एज पेट्स सी इज़ अ गुड रीडर, सी लाइक्स टू रीड रन इवेंट्स, हर हॉबीज़ आर रीडिंग, ट्रेवलिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट। तो जो टीचर ने बताया ना अपने बारे में, हमने एक एक क्वेश्चन उनसे पूछा कि आप टीचर क्यों बने, है ना, आप स्कूल में कैसे आते हो, आपको आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पास में कोई पैट है ना। तो इस प्रकार से हमने उनसे जो पूछा, उन्होंने जो जवाब दिया उसका हमें एक पैराग्राफ लिखना है। चलिए, ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर, आपकी रीडिंग, आपकी पोएम, आपके न्यू वर्ड्स। आप देख लेते हैं एक छोटी सी वर्कशीट फॉर यू। ओके, सो राइट योर नेम, सेक्शन रोल नंबर 8, राइट द राइमिंग वर्ड्स। बस राइमिंग वर्ड लिखना आपको हम बता चुके हैं पहले से ही, ये आपके लिए है ना, वर्कशीट है। आपका जो नॉलेज है, आप इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखे वो आप बता दीजिए। फिर बस का राइमिंग वर्ड आपको बताना है। क्राउड ना, क्राउड, प्राउड। चलिए, ग्राउंड, डोर, रेन, सिटी। तो इन ये जो 6 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनका क्या लिखना है आपको, राइट द राइमिंग वर्ड्स। इनका राइमिंग वर्ड्स, राइम करते हुए कोई वर्ड है तो वो लिखना है आपको। आप एक लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं हर वर्ड के लिए। कौन कौन से वर्ड है, बस है, क्राउड है, ग्राउंड है, डोर है, रेन है, सिटी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ही ऑपोजिट क्वेश्चन के लिए आपके लिए, मैच द ऑपोजिट्स। आपको मैच करना है ना। चलिए, इसमें कौन सा है, स्लो है, बैक है, इसमें बिलो है, लाउड, अप, टॉल, गो। तो मैच करना है। जैसे स्लो का क्या हो सकता है, सामने देखो फास्ट है 3 नंबर पे। बैक का क्या हो सकता है, तो लास्ट में नीचे से 3 नंबर पे फ्रंट। तो इस प्रकार से आप उसको मैच करना है। सामने लिखे हुए हैं अबव, डाउन, फास्ट, शॉर्ट, फ्रंट, वाइट, कम। तो ये ऑपोजिट्स भी हम आपको पहले स्लाइड्स में पीपीटी में बता चुके हैं। तो ये मैच द ऑपोजिट्स, आपको ये विलोम शब्द जो है, ऑपोजिट वर्ड जो है मैच करने हैं, जिसका सही ऑपोजिट है उसके सामने। चलिए, फिर नंबर 3 क्वेश्चन है वर्कशीट का। ओके, इनका आपको प्लूरल लिखना है। जैसे कार है, सिटी है, सॉन्ग है, हाउस है, बस है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स ए, एन और डी। जो 3 आर्टिकल्स हैं ए, एन और डी, इनका यूज़ हमें करना है यहाँ पे। जैसे पहला है, देयर इज़ डैश एप्पल एंड डैश बनाना ऑन डैश प्लेट। अनीता इज़ ड्राइंग डैश एलिफेंट। आई नीड डैश अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग। अब्राहम लिंकन वॉज डैश प्रेसिडेंट। ओके, ऑफ यूएसए। सो इस प्रकार से हमें जो करेक्ट आर्टिकल है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे देयर इज़ एप्पल, तो एप्पल से पहले क्या आएगा, एन आएगा, है ना, एप्पल। देयर इज़ एन एप्पल एंड ए बनाना, ए आएगा। देयर इज़ एन एप्पल एंड ए बनाना ऑन दी प्लेट। ओके, तो इस प्रकार से हमें इन आर्टिकल्स का यूज़ इन सेंटेंस में करना है। 3 आर्टिकल्स हैं, 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, ए, एन और द। पहला देखिए, देयर इज़ एन एप्पल एंड ए बनाना ऑन द प्लेट। फिर दूसरा है, अनीता इज ड्राइंग। अब एलिफेंट है, इससे पहले भी एन ही आएगा ना, जो वॉवेल से शुरू हो रहा है ना, आवाज़ जिसकी साउंड। आई नीड एन, यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अम्ब्रेला। एन, आई नीड एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द आएगा। आई कॉट अ बिग फिश यस्टरडे। ओके, डैश ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो द आएगा ताजमहल से पहले, द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, एंड और बट जो है इनका यूज़ करना है सेंटेंसेस में। चलिए, कितने सारे हमने देखिए, ग्रामर भी, एक छोटी सी पोएम है सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल, इसमें हमने कितनी सारी ग्रामर की चीज़ें थी वो पढ़ ली हमने। ऑपोजिट वर्ड, राइमिंग वर्ड, है ना, प्लूरल हमने पढ़ लिया, फिर हमने डिग्रीज पढ़ ली, अभी आर्टिकल्स पढ़ लिया, अभी हम एंड और बट का यूज़ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका भी। माई डैड डैश मोम टुक मी टू द पार्क, एंड आएगा यहाँ पे, माई डैड एंड मोम पार्क में ले गए मुझे। जॉन मस्ट स्टडी
else he will not pass the test. David ran fast as he still did not win the race. तो इसमें बट आएगा, तेज तो थोड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाया. माई फेवरेट स्पोर्ट्स है ना, माई फेवरेट स्पोर्ट्स और आर बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. वी विल डांस, सिंग एंड प्ले एट समर कैंप. समर कैंप में हम क्या क्या करेंगे? डांस करेंगे, सिंग करेंगे, गाएंगे और खेलेंगे. चलिए, तो इसमें एंड आया. तो इस प्रकार से ये एंड और बट का यहाँ पे यूज़ था. और नीचे है वर्ड बिल्डिंग, फ्रेम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड पीपल से. इस प्रकार से ये आपका चैप्टर हुआ, पोएम हुई सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल. कैसा लगा? मैं था शेष राज. फिर एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर के जल्द ही हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. थैंक यू सो मच. गुड बाय.